رات کا آخری پہر جب خدا خود پکارتا ہے، رات کا وہ گہرا سناٹا جب کائنات کی ہر چیز گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، تب آسمانوں سے ایک صدا گونجتی ہے۔ وہ وقت جسے دنیا تہجد کہتی ہے، دراصل وہ بندے اور رب کے بیچ کا سب سے نجی اور مقدس ہولی سمے ہے۔ عرش سے آتی آواز۔ اللہ کے رسول شرن نے فرمایا کہ ہر رات جب آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پروردگار پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مغفرت معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ ذرا غور کیجئے، کائنات کا مالک خود انتظار میں ہے اور ہم خوابوں کی دنیا میں کھوئے ہیں۔ یہ لمحہ غفلت کا نہیں بلکہ قسمت بدلنے کا ہے۔ یہ پنکتیاں انسان کے وجود اور اس کی روحانی منزل کا آئینہ ہے۔ دنیا کی اس بھاگ دوڑ میں جہاں ہر کوئی دکھاوے اور دولت کی ریس میں ہے، وہاں اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسا ہے۔ آپ کی ان گہری باتوں کو اور بھی ادب، سادگی اور دل کو چھو لینے والے انداز میں یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے، بھیڑ میں رہ کر بھی جو جدا ہیں، اس اندھی دوڑ والی دنیا میں جہاں لوگ صرف پانے کی حسرت میں جی رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان اور مال سے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے تو عام انسانوں کی طرح ہیں، لیکن عرش آسمان پر ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ خاص بندوں کی روحانی پہچان: 1. شکر اور صبر کا مزاج۔ اللہ کے خاص بندوں کی زندگی دو ہی چیزوں پر ٹکی ہوتی ہے، شکر اور صبر۔ جب خوشیاں ملتی ہیں تو وہ اسے اپنی قابلیت نہیں بلکہ رب کا فضل مان کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ رات کے 3 بجے کی خصوصیت، اسپیشلٹی: تہجد کا وقت صرف ایک سمے نہیں بلکہ ایک روحانی سکون ہے۔ اس وقت کی دعاؤں میں جو اثر ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اخلاص، سچائی۔ دن کی دعاؤں میں شاید دنیا دیکھ رہی ہو، لیکن رات کے 3 بجے آپ کے اور خدا کے بیچ کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ یہاں دکھاوا نہیں، صرف درد اور محبت ہوتی ہے۔ صاف ذہن اور پرسکون دل۔ موبائل کی گھنٹیاں شانت ہوتی ہیں، دنیا کا شور تھم چکا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو کہتا ہے وہ سیدھا دل سے نکلتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی صدا۔ رات کی تنہائی میں جب انسان اپنے گناہوں اور پریشانیوں کو یاد کر روتا ہے تو وہ آنسو عرش تھرون کو ہلا دیتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا اور گڑ گڑانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ تہجد، نیک لوگوں کا طریقہ۔ اتہاس گواہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے ولی اور نیک لوگ گزرے ہیں، ان کی راتوں کی عبادت نے ہی انہیں بلندی بخشی ہے۔ تہجد کی نماز صرف سنت نہیں بلکہ 1. سکون قلب، دل کا چین ہے۔ 2. رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ 3. چہرے کا نور ہے۔ 4. مشکلوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ ایک حقیقت جو دل چھو لے۔ کلپنا کیجئے، ہر طرف اندھیرا ہے، آپ مصلے پر بیٹھے ہیں اور اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، یا اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کی خاموشی کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کی دعا اس تیر کی طرح ہے جو کبھی اپنے نشانے سے نہیں چوکتی۔ آج سے ایک وعدہ: اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے جو برسوں سے ادھوری ہے، تو بس یہ چھوٹا سا کام کریں۔ رات کو جلدی سونے کی کوشش کریں، تہجد کا الارم لگائیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھیں اور اپنے دل کا سارا بوجھ اپنے خدا کے سامنے رکھ دیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ رات کو اٹھ کر روتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کے سامنے کبھی رونے نہیں دیتا۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک وقت کی قدر کرنے اور سجدوں کی لذت نصیب فرمائے۔ یہ باتیں دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والی ہیں۔ رات کا وہ سناٹا اور رب کی عبادت، یہ ایک ایسا سنگم ہے جو انسان کی روح کو پاکیزہ شدھ کر دیتا ہے۔ آپ کی ان خوبصورت باتوں کو اور بھی ادب، روحانیت اور تاثیر کے ساتھ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ شب بیداری، وہ خوش نصیب جو رات میں جاگتے ہیں۔ رات کا وہ پہر جب کائنات کی ہر ہلچل تھم جاتی ہے اور دنیا گہری نیند کی چادر اوڑھ لیتی ہے، تب کچھ خاص روحیں، سولز اپنے رب کی پکار پر جاگ اٹھتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خود اپنے پاس بلانے کے لیے چنا ہے۔ رات میں اٹھنے والوں کی شان۔ 1. روحانی محبت کے متوالے۔ زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن سچی محبت وہ ہے جو انسان کو مخمل کے بستر سے اٹھا کر مصلی پریئر میٹ پر کھڑا کر دے۔ نبی کریم کی عبادت ایسی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ ڈر نہیں بلکہ اس رب کا شکر ادا کرنے کی بے قراری تھی۔ 2. گناہوں سے توبہ کرنے والے دن کی روشنی میں ہم اکثر بھول کر بیٹھتے ہیں، لیکن رات کا اندھیرا ان گناہوں کو یاد دلاتا ہے۔ جو لوگ رات میں رو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے آنسوؤں کی قیمت جنت کے محلوں سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ 3. ٹوٹے ہوئے دل کے مسافر، جب دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، تب رات کا سناٹا اس کا ہمدرد بنتا ہے۔ رات کے 3 بجے کی پکار وہ مرہم ہے جو ہر زخم کو بھر دیتی ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ خوبیاں جو انہیں خاص بناتی ہیں: اخلاص، نسوارتھ بھاو۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، بس بندہ ہے
और उसका खालिक बनाने वाला है। जन्नत के तलबगार ये जानते हैं कि आरामदायक नींद कुर्बान किए बिना ऊंचे दर्जात नहीं मिलते। सब्र और सुकून रात को जागने वालों के चेहरों पर एक खास नूर और दिल में गजब का सुकून होता है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। बुजुर्गों का तरीका सलफ ए सालिहीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी और हजरत उमर रजी जैसे महान लोग अपनी रातों को आंसुओं और सजदों से सजाते थे। उनकी ताकत उनकी तलवारों में नहीं बल्कि उनकी रात की दुआओं में छिपी थी। जिंदगी बदलने का नुस्खा तहज्जुद। अगर आप अपनी परेशानियां दूर करना चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहते हैं या बस सुकून की तलाश में हैं, तो ये कदम उठाएं। अहद संकल्प सोने से पहले नियत करें कि मैं अपने रब से मिलने उठूंगा। तन्हाई का फायदा जब सब सो रहे हों तब अपनी सारी शिकायतें, सारे दर्द और सारी ख्वाहिशें अल्लाह के सामने रख दें। रोकर मांगना अगर आंसू ना निकले तो रोने जैसी सूरत बना लें, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की आजीजी ह्यूमिलिटी बहुत पसंद है। एक आखिरी बात, जब आप तन्हाई में कहते हैं या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो अर्श थ्रोन पर फरिश्ते आपकी दुआ पर आमीन कहते हैं। ये वक्त दुआ के कबूल होने का नहीं बल्कि तकदीर के बदल जाने का वक्त है। आज की रात शायद आपकी जिंदगी की सबसे हसीन रात बन जाए। कोशिश जरूर कीजिएगा। दुआओं की दरख्वास्त। ये पंक्तियां इंसान के वजूद और उसकी रूहानी मंजिल का आईना है। दुनिया की इस भागदौड़ में जहां हर कोई दिखावे और दौलत की रेस में है, वहां अल्लाह के खास बंदों का जिक्र एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। आपकी इन गहरी बातों को और भी अदब, सादगी और दिल को छू लेने वाले अंदाज में यहाँ पेश किया गया है। अल्लाह के महबूब बंदे, भीड़ में रहकर भी जो जुदा हैं, इस अंधी दौड़ वाली दुनिया में जहां लोग सिर्फ पाने की हसरत में जी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जान और माल से अपने रब को राजी करने में लगे हैं। ये वो लोग हैं जो जमीन पर चलते तो आम इंसानों की तरह हैं, लेकिन अर्श आसमान पर इनके चर्चे होते हैं। खास बंदों की रूहानी पहचान। 1. शुक्र और सब्र का मिजाज। अल्लाह के खास बंदों की जिंदगी दो ही चीजों पर टिकी होती है, शुक्र और सब्र। जब खुशियाँ मिलती हैं तो वे इसे अपनी काबिलियत नहीं बल्कि रब का फजल मानकर सजदे में गिर जाते हैं, और जब आजमाइश परेशानी आती है तो वे शिकायत नहीं करते बल्कि मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा रब मेरे लिए जो करेगा बेहतर करेगा। 2. रात की तन्हाई के राजदार। जब दुनिया खर्राटे ले रही होती है तब ये मुसाफिर अपने बिस्तर छोड़ देते हैं। तहज्जुद के मुसल्ले पर गिरते हुए उनके आंसू उनके गुनाहों को धो देते हैं। वो वक्त उनके और उनके खालिक बनाने वाला के बीच का सबसे सच्चा वक्त होता है। उनकी असली ताकत उनकी रातों की इबादत में छिपी होती है। 3. नरम दिल और खामोश मिजाज। उनका दिल मोम की तरह नरम होता है। वे किसी का दिल नहीं दुखाते, और अगर कोई उन्हें दुख दे तो वे इंतकाम बदला नहीं लेते बल्कि माफ कर देते हैं। वे जानते हैं कि जो दूसरों को माफ करता है खुदा उसे माफ करता है। दिखावे से दूर, खुदा के नूर के करीब। खामोश सदका। वे इस तरह मदद करते हैं कि दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है। उनका मकसद वाहवाही लूटना नहीं बल्कि किसी गिरते हुए को सहारा देना होता है। गुनाह से खौफ। छोटी सी गलती भी उनके दिल को बेचैन कर देती है। वे गुनाह के करीब जाने से ऐसे डरते हैं जैसे कोई आग से डरता है। कम गोई, कम बोलना। वे फालतू बातों और गीबत बुराई से अपनी जबान को पाक रखते हैं। उनकी खामोशी में भी एक जिक्र होता है। सुन्नत ए नबवी उनका अक्स। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद और ने सिखाया कि असल कामयाबी महलों में नहीं बल्कि सादगी और अखलाक अच्छे व्यवहार में है। आप रात भर इबादत करते और दिन भर लोगों की खिदमत। अल्लाह के खास बंदे इसी सांचे में ढलने की कोशिश करते हैं। क्या हम भी खास बन सकते हैं? अल्लाह का खास होना किसी खानदान या रुतबे की बात नहीं, ये तो नीयत की बात है। अगर हम आज से ये चंद अहद वादे कर लें तो हम भी उस फहरिस्त लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। 1. तन्हाई में अल्लाह को याद करना। जहाँ कोई ना देख रहा हो वहाँ भी नेक रहना। 2. माफी को रास्ता बनाना। लोगों की गलतियों को दरगुजर करना। 3. तवक्कुल भरोसा। हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह की तरफ देखना। एक दिल को हिला देने वाली बात, जरा सोचिए उस मंजर के बारे में जब अल्लाह फरिश्तों को फख्र से दिखाता है, देखो मेरा वो बंदा जिसे दुनिया की चकाचौंध भी मुझसे जुदा न कर सकी। वो लम्हा ही असल कामयाबी है। आज से ही कोशिश शुरू करें। भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि उस रूहानी रास्ते के मुसाफिर बने जहाँ मंजिल खुदा खुद है। अल्लाह हम सबको अपने नेक और खास बंदों में शुमार फरमाए। ये शब्द नहीं बल्कि रूह की आवाज़ है। रात का वो आखिरी पहर जिसे हम अक्सर नींद में गुजार देते हैं, दरअसल वो अपनी किस्मत लिखवाने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। शबे बेदारी, वो खुशनसीब रूहें जो रात में जागती हैं। जब कायनात खामोश हो जाती है, जब परिंदे अपने घोंसलों में और इंसान अपनी नींदों में खो जाते हैं, तब अर्श के साये में कुछ खास महफिलें सजती हैं। ये महफिलें उन लोगों की होती हैं जिन्हें दुनिया तो भूल जाती है लेकिन अल्लाह कभी नहीं भूलता।
रात के मुसाफिरों की दास्तां। 1. मोहब्बत का सच्चा इम्तिहान। कहने को तो हर कोई कहता है कि उसे खुदा से मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का दावा तब सच साबित होता है जब इंसान मखमल का बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वजू करता है। हमारे नबी रात भर खड़े होकर इबादत करते थे, यहाँ तक कि आपके मुबारक पैरों में सूजन आ जाती थी। ये मोहब्बत की वो पराकाष्ठा पीक है जहाँ थकान भी इबादत बन जाती है। 2. तन्हाई में गुनाहों का एतराफ। कन्फेशन। दिन की रोशनी में हम अक्सर अपने चेहरे पर नकाब ओढ़े रहते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में हम वही होते हैं जो असल में हैं। तहज्जुद गुजार वो हैं जो अकेले में अपने गुनाहों को याद कर आंसू बहाते हैं। और याद रहे, अल्लाह को अपने बंदे का वो आंसू सबसे ज्यादा पसंद है जो तौबा की नीयत से गिरता है। 3. टूटे हुए दिलों की आखिरी पनाहगाह। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब अपने पराये हो जाते हैं और दिल गमों से भारी होता है, तब रात का सन्नाटा पुकारता है। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि इंसानों से गिड़गिड़ाने से बेहतर है उस रब के आगे सर झुकाना जो कुन हो जा कह दे तो रातों रात तकदीरें बदल जाती हैं। वो खूबियाँ जो इन्हें भीड़ से अलग करती हैं। दिखावे से पाक सिंसेरिटी। इस वक्त कोई तारीफ करने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता, बस बंदा होता है और उसका खालिक। यही वह इखलास है जो दुआ को सीधा अर्श तक ले जाता है। जन्नत के तलबगार ये जानते हैं कि बड़ी मंजिलें बड़ी कुर्बानियाँ मांगती हैं। अपनी नींद की कुर्बानी ही इन्हें जन्नत के करीब ले जाती है। अल्लाह के राज़दार सहाबाए कराम रजी की रातों का हाल देखें। हजरत उमर रजी और हजरत अली रजी की रातों की इबादत ने ही उन्हें वो ताकत दी थी कि ज़माना आज भी उनकी मिसाल देता है। रात के पहरेदारों की पहचान। अल्लाह के ये खास बंदे ज़मीन पर बहुत सादगी से चलते हैं, लेकिन उनके अंदर एक समंदर होता है। उनके लहजे में नरमी होती है, उनके चेहरे पर इबादत का नूर होता है। वे मुश्किलों में सब्र का दामन नहीं छोड़ते। उनका पूरा तवक्कुल भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है। एक हकीकत जो रूह कंपा दे। जरा सोचिए, जब आप मुसल्ले पर बैठे रो रहे होते हैं, तब अल्लाह अपने फरिश्तों के सामने आपका जिक्र करता है। वो कहता है, देखो मेरे इस बंदे को जिसकी आंखें सिर्फ मेरे डर और मेरी मोहब्बत में भीगी हैं। जिस इंसान का जिक्र 7 आसमानों के ऊपर होने लगे, भला उससे ज्यादा खुशनसीब और कौन होगा। आज से एक नई शुरुआत। जिंदगी बदलने के लिए सालों की नहीं, बस एक सच्ची रात की जरूरत होती है। अगर आप भी उस फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो एक नियत करें। सोने से पहले अल्लाह से कहें कि ऐ रब मुझे अपने पास बुला ले। 2. हिम्मत करें। अलार्म बजते ही बिस्तर को शैतान की तरह झटक दें। 3. बात करें। नमाज के बाद अपने दिल की हर बात अल्लाह को सुना दें, जैसे किसी सबसे करीबी दोस्त को सुनाते हैं। याद रखें, तहज्जुद की दुआ वो तीर है जो कभी खता नहीं होता। जो बात कहीं नहीं बनती वो रात के इस पहर में बन जाती है। अल्लाह हम सबको अपनी रातों को सजदों से रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। मुसाफिर खाना। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। हम भाग रहे हैं, कभी पैसों के पीछे, कभी रुतबे के पीछे, तो कभी दूसरों को नीचा दिखाने के पीछे। लेकिन क्या कभी हमने रुककर अपनी धड़कनों से पूछा है कि ये कब तक चलेंगी? जिस दिन ये सांसों की डोरी टूटेगी, उस दिन ये सारी चमक धमक धरी की धरी रह जाएगी। जिंदगी की हकीकत और मौत का सन्नाटा। 1. साये की तरह पीछे भागती मौत। हम मौत को एक अंत समझते हैं, जबकि वो एक शुरुआत है। आज हम जिस बिस्तर पर सुकून से सोते हैं, कल शायद वो जमीन की मिट्टी हो। जिस आवाज को आज लोग सुनते हैं, कल वही आवाज एक खामोश सन्नाटा बन जाएगी। हम सामान 100 साल का जमा करते हैं, लेकिन पल भर की खबर नहीं रखते। 2. आलीशान घर और तंग कब्र। इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक खूबसूरत घर बनाने में गुजार देता है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता कि उसका असली घर तो वो अंधेरी कब्र है, जहाँ न कोई खिड़की होगी और न कोई हमसफर। जिस परिवार के लिए उसने दिन रात एक कर दिया, वही परिवार उसे जलती हुई धूप या ठंडी मिट्टी में छोड़कर लौट आएगा। 3. सबसे बड़ी गफलत, नेग्लिजेंस। अजीब है ना, हम उन लोगों को खुश करने में लगे हैं जो हमारे मरने के कुछ ही घंटों बाद हमारी विरासत का बंटवारा करने लगेंगे। हम उस दुनिया को सजा रहे हैं जिसे हमें छोड़ना है, और उस आखिरत को भूल गए हैं जहां हमें हमेशा रहना है। असली कामयाबी का पैमाना। दुनिया की नजरों में अमीर वो है जिसके पास दौलत है, लेकिन अल्लाह की नजरों में अमीर वो है जिसका नाम अमाल, रिकॉर्ड्स ऑफ डीड्स नेक है। दौलत यही रह जाएगी, आपका बैंक बैलेंस सिर्फ वारिसों के काम आएगा। ओहदा यही रह जाएगा, आपके नाम के आगे लगा डॉक्टर या इंजीनियर सिर्फ पत्थर पर लिखा रह जाएगा। सिर्फ नेकियां साथ चलेंगी। वो एक सजदा जो आपने तन्हाई में किया, वो 1 रुपया जो आपने किसी गरीब को दिया, यही आपके अंधेरे सफर के चिराग बनेंगे। नबी करीम हून की नसीहत। हमारे प्यारे नबीश ने दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर जैसी दी है जो एक दरख्त पेड़ के साये में चंद लम्हों के लिए सुस्ताने रुकता है और फिर अपनी मंजिल की ओर चल देता है। हम मुसाफिर हैं, मेहमान नहीं। मंजिल तो मौत के बाद शुरू होती है। एक सवाल जो रूह को झकझोर दे,
अगर अभी इसी वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए तो क्या हमारे पास खुदा को दिखाने के लिए कुछ है? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमारी नमाजें हमारा इंतजार तो नहीं कर रही? क्या हमने अपनी जिंदगी सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पीछे जाया कर दी? जिंदगी बदलने का लम्हा। मौत को याद करना उदास होने के लिए नहीं बल्कि जिंदा होने के लिए है। अगर हम आज जाग जाएं तो हम 1. अखलाक सुधारेंगे क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात आखिरी हो। 2. इबादत करेंगे क्योंकि नमाज ही वो पहली चीज है जिसका हिसाब होना है। 3. तौबा करेंगे क्योंकि अल्लाह के दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक सांसें चल रही हैं। आखिरी रूहानी बात, मौत डराने वाली चीज नहीं है अगर आपकी दोस्ती आपके रब से हो जाए। आज से ही अपनी जिंदगी की प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बदलें। दुनिया के लिए जिए जरूर मगर दुनिया के होकर न रह जाएं। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जानी है, बस अल्लाह का नाम और नेक काम ही निशानी है। अल्लाह हमें मौत की तैयारी करने और नेक खात्मे एंड की तौफीक अता फरमाए। आखिरी सफर, एक कड़वी मगर हसीन हकीकत। हम जिस जिंदगी को अपनी कहते हैं वो दरअसल हमें उधार दी गई चंद सांसें हैं। हम भाग रहे हैं उस दुनिया के पीछे जो खुद फना खत्म होने वाली है। क्या कभी हमने सोचा है कि जब ये शोर थम जाएगा तब हमारे पास क्या बचेगा? मौत की खामोश दस्तक और तन्हाई। एक सांसों का रुक जाना। इंसान पूरी जिंदगी बोलता है, हजारों वादे करता है, शिकायतें करता है, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जब उसकी जबान उसका साथ छोड़ देती है। वो अपनों को देख सकता है, उनके आंसू महसूस कर सकता है, मगर एक लफ्ज भी कह नहीं पाता। वो वक्त गफलत, बेहोशी से जागने का होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 2. सफेद लिबास और मिट्टी का बिस्तर। जिस शरीर को हमने महंगे कपड़ों और इत्र से सजाया उसे एक सादे सफेद कफन में लपेट दिया जाता है। जिस घर की ईंट हमने बड़े चाव से चुनी थी उस घर से हमें जनाजे की शक्ल में बाहर निकाल दिया जाता है। लोग रोते हैं, यादें ताज़ा करते हैं और फिर हमें मिट्टी के सुपुर्द करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। 3. कब्र का सन्नाटा। कब्र का वो पहला पल इंसान के वजूद का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब करीबियों के जूतों की आवाज़ भी दूर हो जाती है तब न बैंक बैलेंस काम आता है न ऊंचे ओहदे। वहाँ सिर्फ वो एक सजदा काम आता है जो आपने अकेले में अपने रब के लिए किया था। वो एक सच्चा आंसू काम आता है जो तौबा के लिए गिरा था। मुसाफिर खाना और असल मंजिल। दुनिया की हैसियत महज उतनी ही है जितनी एक दरख्त पेड़ के साए की, जहाँ इंसान थोड़ी देर सुस्ताता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अस्थाई दौलत। पैसा यही रह जाएगा, जमीन यही रह जाएगी। स्थाई सुकून। सिर्फ अल्लाह की याद और नेक अमाल काम ही आपके साथ उस पार जाएंगे। असली कामयाबी वो नहीं जो दुनिया की नजरों में दिखे बल्कि वो है जो आखिरत में आपके तराजू को भारी कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम एक अजनबी या राहगीर मुसाफिर हो। ये हदीस हमें सिखाती है कि यहाँ दिल न लगाओ बल्कि यहाँ से अपनी मंजिल आखिरत का सामान जमा करो। वक्त अब भी हाथ में है। अगर आज सूरज की पहली किरण के साथ आपकी आंख खुली है तो ये अल्लाह का आप पर बड़ा एहसान है। ये एक और मौका है। 1. तौबा के लिए क्योंकि रब की रहमत उसके गुस्से पर भारी है। 2. माफी के लिए अगर किसी का दिल दुखाया है तो मिट्टी में मिलने से पहले माफी मांग ले। 3. इबादत के लिए क्योंकि नमाज ही वो नूर है जो कब्र के अंधेरे में आपका साथ देगी। एक रूह को झकझोरने वाली बात। सोचिए, अगर आज का दिन आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप अपने रब से मिलने के लिए तैयार हैं? दुनिया का काम कभी खत्म नहीं होगा लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खत्म हो जाएगी। आज वक्त है, नेक काम कर दो, कल वक्त होगा पर शायद तुम ना हो। अल्लाह हम सबको अपनी जिंदगी को आखिरत की तैयारी में लगाने की तौफीक दे। टूटा हुआ दिल और रात की सरगोशियाँ। दुनिया की नजरों में वे सिर्फ हंसते हुए चेहरे हैं जो महफिलों की रौनक बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और सन्नाटा छाता है उनके अंदर का जख्म गहरा हो जाता है। दुनिया के लिए मुस्कुराने वाले ये लोग रात होते ही अपने रब के सामने टूटकर बिखर जाते हैं। जब तन्हाई हमसफर बन जाती है। 1. दिखावे की मुस्कान और हकीकत के आंसू। दिन की हलचल में इंसान खुद को काम में डुबो लेता है ताकि उसे कुछ याद ना आए, लेकिन रात का सन्नाटा बड़ा बेरहम होता है। ये उन तमाम यादों, धोखों और जख्मों को कुरेद देता है जो अपनों ने दिए होते हैं। उस वक्त जब आंखें भर आती हैं तो इंसान को समझ आता है कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं सिवाय उस जात के जिसने हमें पैदा किया है। 2. अल्लाह के सबसे करीब कौन। कहा जाता है कि अल्लाह का अर्श तब हिलता है जब किसी बेसहारा और टूटे हुए दिल से आह निकलती है। जब आप रात के 3 बजे उठकर कहते हैं, या अल्लाह मैं हार गया हूँ, अब तू ही संभाल ले, तो वह पल आपकी जिंदगी का सबसे कीमती पल होता है। अल्लाह तो खुद फरमाता है, मैं टूटे हुए दिलों के करीब रहता हूँ। 3. दुनिया की बेरुखी और रब की रहमत। अक्सर दिल का टूटना एक तोहफा होता है
जब तक दिल नहीं टूटता हम इंसानों से उम्मीदें बांधे रखते हैं। जब दिल टूटता है तो सारी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाती हैं, और जो अल्लाह से उम्मीद जोड़ लेता है वो कभी मायूस नहीं होता। टूटे हुए दिल की हिकमत, विजडम, सब्र का मदरसा। जिसका दिल टूटता है वो सबसे ज्यादा सब्र करना सीख जाता है। वो जान जाता है कि बदला लेने से बड़ा माफ कर देना है। इखलास की दुआ, टूटे दिल की दुआ में कोई बनावट नहीं होती, वो सीधा रूह से निकलती है और बिना किसी रुकावट के आसमानों को चीरती हुई कबूलियत तक पहुंचती है। तवक्कुल की ताकत, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो इंसान का तवक्कुल, भरोसा अल्लाह पर अटूट हो जाता है। वो जान लेता है कि अगर रब साथ है तो पूरी दुनिया की मुखालफत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नबी करीम खान का उसवा मिसाल, हुजूर की जिंदगी गमों और तकलीफों से भरी थी। आपने अपनों को खोया, अपनों के जुल्म सहे, लेकिन आपका दिल हमेशा अल्लाह की याद से आबाद रहा। आपने सिखाया कि दुख इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाने का एक जरिया है। अगर आपका दिल भी उदास है तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। रात का ये सन्नाटा आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपके रब से बात करने के लिए है। मुसल्ले पर आएं, अपने आंसुओं को जमीन पर गिरने दें, क्योंकि अल्लाह इन आंसुओं की कीमत जानता है। बात करें, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रोता है, वैसे ही अपने रब के सामने अपने सारे गम रख दें। उम्मीद रखें, वो जो रात के बाद सुबह का सूरज निकाल सकता है, वो आपके अंधेरे दिल में खुशियों का नूर भी भर सकता है। एक आखिरी रूहानी बात, टूटा हुआ दिल एक दरवाजा है। जब तक ये टूटता नहीं, इसके अंदर अल्लाह की रहमत का नूर दाखिल नहीं होता। अगर आज आप अंदर से टूटे हुए हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आज आप उस मकाम पर हैं जहां अल्लाह आपको खुद अपने करीब बुला रहा है। रात का रोना सुबह की मुस्कुराहट की जमानत है। अल्लाह हर टूटे हुए दिल को सुकून और सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।